Is a special session with Kho-Kho Federation of India. We have with us Mr. Rishikesh Joshi, the moderator for the session. Mr. Joshi is a national level swimmer himself, and he founded Sports for All with the rallying call of Ab Jeetega India. Making his 3-decade experience an enabler, he aspires to revolutionize the sporting culture and to empower the sporting talent pool in the country, beginning from the grassroots. Adding to this, his contribution to some of the India's most premium sports IPs for more than 15 years now is highly commendable. I request everybody to give a big round of applause. He's also the Secretary, Sportscom Industry Federation. May I now invite on stage our distinguished speakers for the session. Mr. Sudhanshu Mittal, President, Kho-Kho Federation of India. Mr. M.S. Tyagi, Secretary General, Kho-Kho Federation of India. Mr. Sumit Bhatia, National Coach, Kho-Kho Federation of India. Mr. Ashwini Sharma, National Coach, again Kho-Kho Federation of India. Ms. Nazreen Sheikh, Arjun Awardee, Captain India Women's Team of Kho-Kho. Okay, she'll be joining us shortly for the session, please. I welcome you all and requesting Mr. Joshi to kindly welcome our distinguished speakers, please. May I request Mr. Joshi to kindly welcome Mr. Tyagi, please, now. Mr. Sumit Bhatia. Mr. Ashwini Sharma. Welcome, sir. I request Mr. Joshi to kindly take over the session, please. Thank you. Hello. Good morning, everyone. Firstly, thank you so much for being present here. I'll take the first minute as the representative of Sportscom, a body that is very close to our heart, and myself, Jalaj Bhai, Vidush, Udit, who's not here today, but Vivek sir, and Kavita, Yash, and the entire team consciously took this decision this year to not keep the AGM just bound, to the members or to the office bearers, but actually put it out there for a larger section of the industry. Since we have such a beautiful presence out here today, I'd urge each one of us to play a larger role at Sportscom going forward, such that we can do more and more address and incorporate a wider section of our sports industry, which is like one big family. We keep hearing, in the previous panel from Paroksh and Ramki and everyone, that more integrated approach. I think as an industry, if we can have a more integrated approach, that's the starting point for every collaboration. So yeah, that's a little bit on behalf of Sportscom. So thank you so much, Sudhanshu ji and Tyagi ji and the entire team, for gracing us with your presence. I'll start with Tyagi ji with the obvious question. I think everyone out here knows the sport of Kho-Kho. But sir, माटी से मैट तक का सफ़र कैसा रहा है? और वहीं से शुरू करेंगे आप. Good morning, everybody. Really, we are proud feel कि हम लोग खो-खो के साथ जुड़े हुए हैं. खो-खो is our indigenous sports, जो हमारी अपनी पहचान है, चाहे वो कल्चर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे हमारा वो फोक डांसेस हैं, चाहे दूसरी कोई भी चीज़ है, तेरा 100% साइंटिफिक बेस्ड है. और जो हमारे पूर्वजों ने जिस चीज़ को बनाया है, मे बी वो कोई भी चीज़ है, चाहे खाना है, रहना है, एवरीथिंग इज़ द साइंटिफिक बेस्ड. तो ये जो स्पोर्ट्स है, जितने भी इंडिजीनियस स्पोर्ट्स हैं, पर्टिकुलरली मैं खो-खो के बारे में बात करूँगा. खो-खो इज़ 100% साइंटिफिक बेस्ड. चाहे वो हार्ट से ले लीजिए, फिटनेस से ले लीजिए. तो इसको बढ़ाने के लिए अब तक जिन लोगों ने काम किया बहुत अच्छा किया, लेकिन 2017 में मुझे जो एक लीडरशिप मिली सुधांशु मित्तल साहब की, और मैं
खो खो खेला हूँ, बचपन में कोच रहा, फिर मैं एडमिनिस्ट्रेटर रहा, डायरेक्टर रहा मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी में। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर ये हमारा जो गेम है इसको हम किस तरीके से वर्ल्ड वाइज इसे बढ़ाएं जिससे इसका लाभ पूरे यूथ को वर्ल्ड वाइज हो। तो इनकी मेहनत से, इनके आइडियाज़ एंड इनका जो एक सोच थी, उससे आज खो खो पूरे विश्व के अंदर जितने भी रीजन्स हैं सभी के अंदर खो खो खेला जाने लगा है। और इतने शॉर्ट पीरियड में मैं ये कह सकता हूँ कि खो खो का जो विकास हुआ है, जो इसमें एक उत्थान आया है, जो इसमें एक क्रांति आई है, उसके पीछे सुधांशु जी और हमारी जो टीम है उसका भरपूर योगदान और भरपूर हम लोगों ने इसके पीछे काम किया है। आज आप लोग जो हमारा इंडस्ट्रीज़ है इसका भी जिम्मेवारी बनता है कि इसको किस तरीके से हम लोग आगे ले जाएं। इसमें मैच हम लोग पहले जो खेला जाता था वो ज़मीन पर खेला जाता था, डिफरेंट उसमें कहीं बजरी थी, कहीं रेत था, कहीं पर डिफरेंट प्ले फील्ड्स हमें मिलते थे। लेकिन आज जो मैट के ऊपर ये आया है तो उसमें सर का बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोगों ने ऐसे ही नहीं, हम लोगों ने इसको उसके डेंसिटी, उसमें चोट इंजरीज अवॉइड किया जा सके, इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं शू के ऊपर, मैट के ऊपर, जो और दूसरा स्पोर्ट्स में एक हेल्प हो सकती है इंजरीज अवॉइड करने के लिए, उन सभी पर हम लोग आप लोगों की मदद चाहेंगे। तो रियली अगर आप लोगों का हम लोगों को सहयोग मिलेगा तो मैं ये बड़े प्राउड से कह सकता हूँ कि हमारे कंट्री का जो स्वप्न है प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया के हिसाब से, तो ये हमारा स्पोर्ट्स भी मेक इंडिया के उसमें आ जाता है। आप जो उसका बढ़ावा करेंगे, जो आप उसमें इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेंगे अच्छे से अच्छे, तो आई थिंक्स ये हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है। नॉट फॉर मी, दस पूरे देश के लिए। हमारे को यदि हम विश्व के अंदर अपना कोई चीज़ चाहते हैं, यदि उसकी हम कल्पना करते हैं कि पूरे विश्व में हो, तो रियली दैट इज़ ए ग्रेट फॉर अस। सो इसके साथ रियली आई एम थैंक्सफुल टू स्पोर्ट्सकॉम, जिन्होंने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार करके हम सब बोलने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया। रियली वी आर वेरी थैंक्सफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच त्यागी जी। और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, बिकॉज आई हैव had the opportunity of interacting with the Kho Kho Federation, with Sudhanshu ji, Tyagi ji and the entire team. One of the better run federations in our ecosystem, and I think they are more than open to listening to and incorporating as many ideas of, you know, technologies, fan engagement, growing the game, participation. So yeah, I think I'm not someone who will just say things, but I've actually experienced it, so that's why I'm putting it out there. But sir, to you. पहली बात तो I must compliment Sportscom. This is the platform which will accelerate the growth of sports in India. हमेशा किसी भी फील्ड के लिए एक एपेक्स बॉडी चाहिए होती है, to which you can look up to. टेक्नोलॉजी है, स्प्रेड है, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आइडिया जो होता है उसके लिए कोई एक एक्सपर्ट बॉडी हमेशा चाहिए होती है जो कि होलिस्टिकली उस गेम को कम नसीब। दैट्स माय कैप्टन, अ बिग हैंड टू हर प्लीज। तो इसलिए स्पोर्ट्सकॉम ने वो जो जगह बनाई है उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। एंड एज आई सेड, यू हैव टू एक्सपैंड योर रोल। मैं हमेशा चाहता हूं कि जो हम जैसी फेडरेशंस हैं उनको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि सारी चीज़ों का ना ज्ञान होता है हम लोगों के पास, ना ही इतने रिसोर्सेज होते हैं कि हम लोग खुद ही अपने आप सारी चीज़ें डिस्कवर कर सकें विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेंट्स और यू नो एक्सपर्ट्स। सो अगर एक बॉडी के पास हम लोगों का हैंड होल्ड करने का wherewithal होगा तो आई थिंक स्पोर्ट्स विल गो अ लॉन्ग वे इन दिस कंट्री, पहली बात। दूसरी बात, सीइंग अ खादी क्लैड
political entity as a sports administrator is the worst thing you can ever have. You know, शुरू से we start with a negative image कि नेता जो है यहाँ पे सिर्फ जो है खेल को खराब करने के लिए आ गए हैं. They are the devils. They are the evil and they are the devils. Well, to fight this perception is really a very tough job. But I think जुनून जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इन images से. तो I think खो खो की जो पूरी कम्युनिटी है, इट्स अ ग्रेट फैमिली, इट्स अ ग्रेट फैमिली. अभी त्यागी जी तारीफ कर रहे थे, तो वी बोथ बिलोंग टू समथिंग कॉल्ड द म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी. मैं इनको कहता हूँ वाह हुजूर आपकी वजह से सारा हुआ, ये मुझे कहते रहते हैं कि आपकी वजह से हुआ. द फैक्ट, लेकिन लेट मी पुट द रिकॉर्ड स्टेट, इट्स एंटायरली द हैंडी वर्क ऑफ त्यागी जी. He has worked really hard at the grassroots level. He has worked hard to create the organization. We are proud to say we are in 680 districts today in the country. मिट्टी से मैट का जो सफ़र है उसमें शिवनरेश जी बैठे हुए हैं. इनको वी बीन हाउंडिंग हिम कि भाई हमें परफेक्ट मैट चाहिए. त्यागी जी हैज़ वर्कड, आई डोंट नो, ही स्पेंट स्लीपलेस नाइट्स एंड बीन टू दिस प्लेस एंड दैट प्लेस. जैसे इन्होंने कहा डेंसिटी के बारे में कि भाई मैट की डेंसिटी इज़ वेरी क्रिटिकल टू अस. जो उसकी लेयरिंग है वो क्रिटिकल है. स्पीड भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए और इंजरी भी कैसे बचाई जाए. ही सेट दी टारगेट कि भाई हमारा जो खिलाड़ी है, अब नसीम यहाँ पे है, इनकी खेलने की लाइफ जो है वो अनफॉर्चुनेटली 5-7 साल से ज़्यादा नहीं होती है. दी एफर्ट इज़ कि भाई ये लाइफ 15 साल कैसे होगी, और ये तभी होगी जब इनकी इंजरीज जो हैं दे आर टेकन केयर ऑफ. वी हैव ऑन आवर एंड ट्राइड a lot of things. Rehab के लिए we are in in association with one of the top clinics in Dubai, globally acclaimed clinic, and मतलब चीज़ें वो हो रही हैं. प्रश्न ये है कि एक तो it's a matter of honor for me कि खो खो को स्पोर्ट्स कॉम में बुलाया जाए. That's a vindication to the effort we are making. Thank you all so much for this vindication. It's a great encouragement for all of us. Sir, just leading up to one more question from there on, क्योंकि आपके पहले टेक्नोलॉजी और फैन एंगेजमेंट का पैनल हो रहा था, और somebody spoke about owning the fan, somebody spoke about इतना सारा डेटा है, इतना mass participation, like one of the very few sports that will have this participation in millions. आज आप इंडिया के कोई भी, like not just like the states where Kho is renowned for, but sir, if I'm not mistaken, more than 20 states में, right up to the union territory level, right up to the Zila Parishad level, there is a crazy amount of participation when it comes to Kho. Aaj, when we look at Kho in different on different platforms like your Khelo India Youth Games and National Games and all of it, you will see some of the highest spectators coming to watch the game of Kho, more than, probably sometimes basketball and football like as well. So, sir, how are you looking to this amazing mass accepted game, a game accepted by the masses? You are like, leading that responsibility for all of them. How do you look at it, and how would you like to leverage it, sir? Yeah, two things. किसी से जब खो खो की बात करता हूँ तो उसके चेहरे पे एक बड़ी प्यारी सी मुस्कान आती है. तो से हमने भी खेला है स्कूल में, क्योंकि दिस इज वन मास स्पोर्ट where no equipment was required, no infrastructure was required. So all of us has at some point or the other been a part of Kho, and that's the strength we have. It's a mass sport. हर गली मोहल्ले धानी चौकी गांव जिला पर मतलब कहीं चले जाइए खो ज़रूर हुआ है. क्योंकि मैंने कहा ना इसमें पैसे ही नहीं लगते थे. बाकी खेलों में तो भाई बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं तो 3,000 का तो डिब्बा ही आता है. टेनिस खेलने मतलब कोई भी खेलेंगे तो उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट रहती थी. इसमें कुछ भी नहीं रहती थी, इसलिए मास स्पोर्ट है. लेकिन क्या हुआ, मास स्पोर्ट होने के बावजूद इंडिजिनस गेम्स का जो ग्लैमर क्रिएट होना चाहिए था वो शायद कहीं रह गया. कबड्डी डिड अ ग्रेट जॉब. आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट कबड्डी कि उन्होंने एक इंडिजिनियस गेम को वाकई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे लाके रखा. मुझे सिर्फ थोड़ा सा उनसे ये गिला है कि उनको उसको सिर्फ छोटे दायरा इतना कम नहीं रखना चाहिए था. 40 साल से जो खेल
एशियन गेम्स का अंग है, वो आज विश्व भर में हर जगह खेला जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कहीं कुछ कारण तो रहे होंगे. लेकिन since technology has a very big role to play, and एक और मैं I'm just throwing an idea. You see, I've always been thinking कि भाई after all हिंदुस्तान में स्पोर्टिंग कल्चर आएगा कैसे? कहना बड़ा आसान है, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ये सब बहुत अच्छे हैं और बड़े वेल मीनिंग स्लोगन्स हैं, बट हाउ डू यू ट्रांसलेट दिस इनटू बीइंग देयर एट द ग्रासरूट लेवल? सी, वी नीड टू मैप the sporting infrastructure available at the grassroots level. जब तक आप उसको मैप नहीं करेंगे तब तक माइक्रो प्लान बनेगा नहीं, माइक्रो से मैक्रो प्लान नहीं बनेगा. नीचे से ऊपर अगर आना है तो पहले नीचे की जानकारी होनी ज़रूरी है, और बहुत बहुत डिफिकल्ट नहीं है. आज के दिन गूगल की इमेजिंग में हर ग्राउंड, किसी गांव का, किसी तहसील का, आपको हर स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ जो है वो दिख जाएगा. उसको मैप करके सिर्फ क्या करना है, अगर रियली मास कल्चर अगर इस देश में स्पोर्ट का क्रिएट करना क्या है? एक आदमी जो पीटी करवा सके, पीटी जिम्नास्टिक करवा सके, और एक आदमी जो एक खेल को सुपरवाइज कर सके, कोई भी लोकल फ्लेवर जो हो. अच्छा, इतनी बड़ी फौज है हिंदुस्तान की, इतनी हर जगह कंटोनमेंट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, रेलवे है, ये है वो है, मतलब इफ यू लुक एट द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर इज सच अ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव विच कैन स्पेयर 2 people जस्ट टू ऑन अ रेगुलर बेसिस 3 बजे से 5 बजे तक इस जगह ये खेल होगा. 1 घंटे पीटी होगी, 1 घंटे फिटनेस हो जाएगी, 1 घंटे. आप देखिए साहब, इस देश का टैलेंट कितना गजब का टैलेंट है, वहां से वो निकल के आएगा. यू हैव टू इंस्टीट्यूशनलाइज स्पोर्टिंग एक्टिविटी, एंड उसमें एज आई सेड टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा काम हो सकता, इतना बड़ा, मतलब आई मीन उस लेवल पे जैसे ही बच्चों की एनरोलमेंट होती है, जैसे ही उनका डेटाबेस बनता है, जैसे ही वो खेलना चालू करते हैं, देन आज तो साहब 9 साल के बच्चा को देख के आप बता देते कि इसका फ्यूचर है कितना नहीं है. When you have to invest with limited resources, you always invest in where the law of probability tells you that this is likely to be more successful. All these things can happen, and अगर हिंदुस्तान को पावर हाउस बनना है तो मैपिंग ही तो करनी है. टैलेंट बहुत है यहाँ पे. In such adverse circumstances, our players play and yet they are winners. Because there is so much of talent. मास होगा तो टैलेंट भी होगा ना, क्यों नहीं होगा? एक चीज आता है, फिर दूसरी चीज आती है कि द क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन एक्सीलेंस एंड पोडियम इज स्पोर्ट साइंसेस. उसका कोई डिबेट ही नहीं हो सकता. आपको बायोमैकेनिक्स पे गौर करना पड़ेगा. अब वो जमाना गया, यहाँ पे अश्वनी जी बैठे हुए हैं, भाटिया जी बैठे हुए हैं, कोचेज हैं, and they've been seeing it. अब हर प्लेयर को इंडिविजुअल लेके चलते हैं हम लोग. Now these are not teams. These are teams of individuals who have to excel individually. And if they have to excel individually, you have to identify the gaps individually. इसका जब ट्विस्ट है तो इसका ट्विस्ट में कितना डिग्री का ट्विस्ट है और होना कितना चाहिए. इसका लिगामेंट प्रेशर कितना आता है, इसके काफ की क्या पोजीशन है, हाइड्रेशन तो चलिए सभी देख लेते हैं. मतलब हर खेल का, एंड दिस नॉट खो खो, टेक एनी अदर गेम, एवरी डिफरेंट स्पोर्ट हैज अ डिफरेंट बायोमैकेनिक रिक्वायरमेंट. वी हैव टू गेट ऑन टू दैट. वी हैव टू गेट ऑन टू आइडेंटिफाइंग ईच प्लेयर बाय हिज एबिलिटीज और हिज lack of abilities on specific organs of his game. Then न्यूट्रिशन का और डाइट का कितना बड़ा खेल है साहब. बड़ा दुर्भाग्य होता है जब मैं खिलाड़ियों के खाने में तरी देखता हूँ, वो लाल तरी जो वो हमारा तड़का जो लगता है ना, तो दाल में भी तड़का तैरता रहता है. वो खाना जब उसको कंपटीशन में खिलाया जाता है, आई हैव अ वेरी एनेक्डोटल स्टोरी टू टेल यू ऑल. You know, I had gone way back in 1990 in the Asian Games in Beijing. So, अब तो तब भी कॉन्टिनेंटल फूड का थोड़ी बहुत एक्सेप्टेबिलिटी है, तब तो बिल्कुल ही नहीं होती थी. पैलेट के हमारे तो रिबेल कर जाता था पैलेट. तो गेम्स विलेज के अंदर सारे खिलाड़ी जो हैं वो तो खाना ही नहीं खा पाते थे.
तो साहब ब्रिलियंटली सोचा गया कि भाई हिंदुस्तान से शेफ मंगवाए जाएं, तो कहाँ से मंगवाए गए? ताज के शेफ्स ऑफ फ्लोन इन। अब ताज के शेफ्स जो फ्लोन इन करे गए, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग हेल्दी फूड दे मेड टेस्टी फूड। तो उन्होंने बटर चिकन बनाया विद ऑल द ग्रेवी एंड ऑल दैट। अब बटर चिकन खाने के बाद वो पहलवान क्या लड़ने वाला है, आप खुद सोच लो। इशू इज अगेन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट टुडे इज मैप्ड डिफरेंटली। व्हेन ही इज गोइंग टू एक्सरसाइज, व्हाट्स हिज रिक्वायरमेंट? उसकी मिनरल रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट क्या है, अलग है। जिस समय रिकवरी मोड में उस समय अलग है, जब वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा अलग है। ये सारी चीजें अलग अलग हैं। One shoe cannot fit all, and you have to marry this with his palate. अगर हम उसकी पैलेट के साथ उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बट दुर्भाग्य ये है कि हम उतना माइक्रो डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, विच यू एज अ बॉडी ऑफ द इंटायर फ्रेटर्निटी मस्ट गाइड अस ऑल। टेल द फेडरेशंस, मेक चैंपियंस आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तुम्हारी जितनी फिजिकल फिटनेस उतनी तो मेंटल फिटनेस से ज्यादा चाहिए आपको। ये है ना, इसको पूछिए how to react, you know, But I mean, I was not wrong when I said the most passionate one of the most passionate federations that, you know, we should be kind of all trying to align with. So, इसीलिए मेरा आपसे कहना है, एंड एक और मैं कहना चाहता हूँ, वी आर रेस्टिंग ऑन लॉरेल्स ऑफ येस्टरडे। क्योंकि साइंस की बात होती है। देखिए, मुझे, आई एम वन मैन हु बिलीव्स you have to be absolutely updated with the best practices globally. And that can only happen if you are in touch with all the research universities, जो sports sciences की universities है। मैं मतलब एक छोटा एग्जाम्पल देके मैं खत्म करूँ। बहुत बोल लिया मेरे को। मैंने कहा नेता के हाथ में कभी माइक नहीं देना चाहिए। That's the worst thing which can happen. You know, we love our voices. I mean, बायोमैकेनिक्स में मशीनें लगा दी हैं और सिमुलेट कर रहे हैं स्टैटिक, और वही चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां उन मशीनों को भी बेच रही हैं, बड़े बड़े हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स भी बन रहे हैं और मशीनें चल रही हैं। वो जमाना था। आज यू हैव टू असेस देम ऑन अ रियल टाइम बेसिस। वो जब खेल रहा है ना, तो उसकी क्या पोजीशन है, उसकी जंप जो थी, वो उस मशीन पे खड़े होकर जंप नहीं चाहिए मुझे। वो खेलते समय उसने पकड़ने के लिए स्काई डाइव जो मारी थी, उसमें क्या पोजीशन थी उसकी पोस्चर क्या था, उसका क्या था। ये सब नहीं हो रहा है। As I said, we are resting on laurels of yesterday. No, please get out of it. And I would blame the industry for that. अरे हमें कहाँ पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में क्या रिसर्च हो रही है, अमेरिका में क्या क्या चीजें हो रही हैं। व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिस? आई वुड नो। आई मीन, like one of the things is that sir, आज आप ऐसे स्पोर्ट के साथ भी जुड़े हो जो probably वर्ल्ड की बेस्ट टैलेंट इंडिया में है, वो ट्रूवन है, इंडियन स्पोर्ट है। लाइक इट्स a bit like what basketball means to America is what probably Kho-Kho and Kabaddi mean to India. I have to make sure that we have stars here who are revered. देखो, I'm not competing with cricket. I mean, that's the national religion. उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। धर्म परिवर्तन नहीं होते हैं। लेकिन I mean, I want a Nasreen to be a star. When she goes out, people should flock her and take her autographs and take her interviews. So Nasreen ji is an Arjuna awardee and the captain of the Indian women's Kho-Kho team. So big round of applause for her. And आपकी journey as a women Kho-Kho player and then associated so closely with the federation as a captain. आप खाली स्पोर्ट पे फोकस नहीं करते, पर आप स्पोर्ट की ग्रोथ पे भी टाइम देते हैं, फोकस करते हैं। तो टेल ऑल ऑफ अस कि वो जर्नी एज अ कैप्टन ऑफ द टीम, जिसको सबसे ज़्यादा स्पोर्ट पे फोकस करना पड़ता है, पर आप फेडरेशन के लिए भी इतना कुछ करते हैं, तो वो कैसे बैलेंस होता है और वो एक्सपीरियंस कैसा है? नमस्ते। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ सुधांशु मित्तल सर का, MS त्यागी सर का, जिन्होंने इतना सपोर्ट करा
और हमारा जो खो खो था, मतलब जैसे सर ने बताया कि माटी से जुड़ा हुआ गेम है, और मैट तक का सफ़र हमारा बहुत टफ रहा, क्योंकि जिस हिसाब से सर प्लानिंग कर रहे होते थे कि बच्चों के लिए क्या करना है, उस हिसाब से जैसे कि मेरे अश्विनी कुमार शर्मा जो मेरे कोच है, भाटिया सर, इन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत करी है। हम ग्राउंड पे मेहनत करते हैं और ये हमारे लिए क्या बेस्ट होना चाहिए ये सोचते हैं, और जितना ज़्यादा बेस्ट होना चाहिए उतनी ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलता है। तो मैं बहुत खुश हूँ। पहले की जर्नी मेरी बहुत टफ थी, मगर जब से सुधांशु सर आए हैं हमारे खो खो में, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। मतलब इतना सपोर्ट, मतलब कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया सर ने किसी भी चीज़ के लिए। मतलब एक होता है ना फेडरेशन वाले, कई फेडरेशन में होता है कि कोई महत्व नहीं होती प्लेयर की, मगर हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि आज अगर हमने कोई सपना देखा है ना कि ये चीज़ होना चाहिए, तो वो कल वो पूरा होता है। इतना ज़्यादा, जैसे कि मैंने इतने नेशनल खेले हैं, 50 से अबव मेरे नेशनल हो गए हैं, 6 इंटरनेशनल हो गए हैं। तो उसमें मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि हमारे दिल्ली में जब सीनियर नेशनल था, वो इतना बेस्ट कराया सर ने, इतना बेस्ट कि हर एक प्लेयर के मन में ये था कि यार क्या टूर्नामेंट हुआ। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसा टूर्नामेंट मैंने देखा नहीं जो हमारे यहाँ हुआ। सर हर बार एक नई चीज़ें देखते हैं कि जो नीड हो वो हमारे बोलने से पहले ही पता लग जाता है। अब हम किसी टूर्नामेंट में जीत के आ रहे हैं, जीत के आना एक अलग है, मगर उसको उसी समय रिवार्ड देना बहुत रेयर ही होता है कि कोई उसे प्रमोट करे। हम मेडल लेके आ रहे हैं, सर ने बोल दिया 5 लाख का चेक, 10 लाख का चेक, मतलब इतना प्रमोट, बच्चे इतने खुश हैं। और पहले हमारा खो खो ऐसे था कि कहते थे क्या गेम है ये, मगर बचपन में सबने खेला है, मगर इतना प्रमोट नहीं हो पा रहा था। आज अर्जुन अवार्ड जैसे लिस्ट में आना अपने आप में ही बहुत प्राउड की बात है। जिस लिस्ट में मोहम्मद शमी जैसा प्लेयर है, क्रिकेटर है, और उस लिस्ट में नसरीन का नाम आ रहा है, वो भी खो खो से, तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। और मैं बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ सर का, जितना प्रमोट कर रहे हैं खो खो को। नसरीन जी, एक और क्वेश्चन आपके लिए कि एज द कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स खो खो टीम, आप बहुत सारे इंटरनेशनल खो खो प्लेयर्स के साथ भी इंटरेक्ट करते होंगे, तब आपको क्या डिफरेंस महसूस होता है बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडियन खो खो टीम वीज़ावी, जैसे मैं जानता हूँ कि यूके, यूरोप, अफ्रीका, ये बहुत जगहों पे खो खो खेला जा रहा है, और जो आप वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर, वो इज़ गोइंग टू बी अबाउट 16 to 20 कंट्रीज, नेशंस कमिंग टू इंडिया टू प्ले द खो खो वर्ल्ड कप। तो वो आपको एम्पावरमेंट कैसी लगती है? क्योंकि मैं इसको थोड़ा बहुत क्रिकेट से कंपेयर कर रहा हूँ। ऐसे 5-7 years ago जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम विमेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट, या इंग्लिश क्रिकेट टीम विमेंस वर extremely professional, and that professionalism has now come into the Indian women's cricket team over the last 7-8 years. But आप already एक professional environment में आपकी टीम को nurture कर रहे हो, तो वो आपका internationally वो कैसे आपको differences नज़र आ रहे हैं? Are we at par, are we better, or do we have a longer way to go? आपको क्या लगता है उसमें? हाँ, जैसे हमारे इंडिया में खो खो बहुत पॉपुलर है। अब धीरे धीरे वो अदर कंट्री में इतना ज़्यादा प्रमोट हो रहा है कि वो छोटे छोटे उनके स्टेट टूर्नामेंट हो रहे हैं, और वो पिक्चर वगैरह शेयर करते हैं, पिक्स वगैरह, कि हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे, और मेरी बात भी होती रहती है कि ये करना चाहिए ऐसे। तो अदर कंट्री भी बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है खो खो को लेके, और प्रैक्टिस वगैरह भी उनकी काफ़ी अच्छी हो रही है। और जैसे इंडियन गेम है, तो जाहिर सी बात है हम बहुत बेस्ट है, और हम बेस्ट ही रहेंगे, क्योंकि हमारा गेम है, ये इंडियन गेम है। तो बाकी और भी कंट्री अच्छा पार्टिसिपेट कर रही है इसमें। करेक्ट, नहीं तो उससे अच्छी बात है, क्योंकि ओवरऑल गेम को प्रमोशन मिल रहा है। बट कमिंग टू द बैकबोन ऑफ द स्पोर्ट, विच इज़ ऑलवेज द गुरुज एंड द कोचेस, भाटिया जी और शर्मा जी, कि आपको कैसे ये एक लेवल पे थैंकलेस जॉब कहा जाता है, आपकी क्या like federation, like from a federation's point of view it's different, from a player's point of view it's different, but from a coach's point of view, how do you view your role and the games
like, journey overall? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि एक समय था जब एज ए कोच पर हम को एक थोड़ी शर्म सी फील होती है कि हम ये कहें कि हम खो खो के कोच हैं। NIS में भी हम खो खो कबड्डी कोच कहा करते थे। वो समय धीरे धीरे चेंज हुआ। आज हमसे पहले खिलाड़ी खड़ा होता है कि ये हमारे कोच हैं, तो ये गर्व की बात है। समय स्टार्ट हुआ, जैसे हम कह रहे हैं माटी से मैट का सफ़र। नसरीन है, मैं कहूँगा कि दिल्ली के कप्तान से देश के कप्तान का इसका सफ़र स्टार्ट हुआ। हम इसके साथ रहे, चाहे वो दिल्ली की टीम हो, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम हो, चाहे इंडिया की टीम हो, और इसने जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसको भी पूरा किया, फुलफ़िल किया। सर ने भी बताया कि डाइट का बड़ा ध्यान रखा जाता था, तो इसी चीज़ को हमने भी ऑब्ज़र्व किया जब हम टीम को लेके जाते थे। खिलाड़ी की परफॉर्मेंस डाउन क्यों जा रही है? अगर हम साउथ में जाते थे तो वहाँ की जो हमें खाना मिलता था या व्यवस्था मिलती थी, उसके बाद भी हम प्लेयर से एक्सपेक्ट करते थे कि वो अपनी वही बेस्ट परफॉर्मेंस दे, लेकिन वो दे नहीं पाते थे। तो हमने क्या स्टार्ट किया कि हमने अपनी मेस ले जाना स्टार्ट किया ताकि प्लेयर्स को बेस्ट फूड प्रोवाइड हो सके और जो भी वो परफॉर्म कर रहा है वो उस एटमॉस्फेयर में फील करे, क्योंकि वो खाने के लिए ही आता है, खाने के बाद ही खेल आता है। तो जब उनको वो चीज़ मिली तो उनकी परफॉर्मेंस अपग्रेड हुई। मैट शूज़ स्टार्ट हुए। पहले हम माटी में थे तो ये बेयर फुट से खेलते थे, कोई यूज़ नहीं। जब मैट पे आए तो मैट शूज़ का बहुत बड़ा योगदान आया। तो एज ए कोच हमने कभी मैट शूज़ पहने ही नहीं थे, तो हम उस खिलाड़ी की वो प्रॉब्लम को कैसे समझेंगे कि वो अगर वो मैट शूज़ पहन रहा है तो वो क्या फील कर रहा है, वो क्या चाहता है उसमें। तो सुधांशु सर ने इसके लिए भी एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया। तो हमने खिलाड़ियों के व्यूज़ लिए, वो व्यूज़ जो मैट शूज़ के जो कंपनीज थी उनको बुलाया, उनसे रिसर्च करी, उन शूज़ को चेंज किया। और आप मानेंगे नहीं, जो हमारी अल्टीमेट खो खो लीग हुई या जो भी हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट चल रहे हैं उसमें इनकी परफॉर्मेंस एकदम अपग्रेड हो गई, क्योंकि अभी तक वो जो शूज़ पहन रहे थे जो जनरल मार्केट में थे वो चल रहे हैं। तो उस चीज़ों पे भी हमने ध्यान दिया। हमने खाली खिलाड़ी की जो नीड है उसको नहीं देखा, वो क्या चाहता है या क्या वो पहन रहा है, उन चीज़ों पर भी हम गए। चाहे उनकी वो किट हो, कई बार क्या होता था इनको किट में अनकंफर्टेबल फील करते थे, हम उस चीज़ों पे भी गए। तो अब जो ये सफ़र हमारा चल रहा है माटी से मैट का, या इंटरनेशनल उस पर जा रहे हैं, जो सबका सपना था वर्ल्ड कप, हम वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उसमें हमारा सबसे बड़ा मोटिव रहता है कि हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रीज़ कितनी पार्टिसिपेट कर रही हैं। कई गेम्स के वर्ल्ड कप होते हैं, वो होते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब हुए, कहाँ हुए, कैसे हुए, कौन खेला। हमने सबसे पहले वर्ल्ड कप की प्लानिंग में आज 2017 से लेके आज 24 इसलिए आया कि हमने वर्ल्ड कप कराने से पहले देश से ज़्यादा विदेश में इस खेल की पॉपुलैरिटी हो, वो टीमें तैयार हों, उस पर ध्यान दिया। और उसी का आज आप देखेंगे 2025 में जब हमारा वर्ल्ड कप का आगाज़ होगा तो 30 to 35 कंट्रीज़ इंडिया में और दिल्ली में आएंगी। तो ये जो सपना था सुधांशु जी का और त्यागी जी का था, वो इन्होंने सपना देखा, हमने एज ए कोच उसमें पूरा करने की कोशिश करी और खिलाड़ियों को भी करा कि मास मीडिया कम्युनिकेशन, क्योंकि आजकल हर चीज़ है, ये इंस्टा पे भी हैं, फेसबुक पे हैं, हर जगह। तो इनको भी हमने कहा कि आप जितना भी इस गेम को पॉपुलर कर सकते हैं किए। और ये नसरीन बैठी है और बाकी भी हमारे खिलाड़ी इंडिया के हैं, उन्होंने हमारा इसमें पूरा योगदान दिया। और उसका ही आप देखेंगे एक साल बाद कि इतनी कंट्रीज़ दिल्ली में आएंगी और खेलेंगी। और ये रुकेगा नहीं, आज 30 है तो 60 होंगी, 60 हैं तो 120 होंगी, ये बढ़ता रहेगा। जैसे हम कहते हैं हमारे 806 डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में, उसमें से हम कहते हैं 750+ डिस्ट्रिक्ट्स में खेला जा रहा है। लेकिन हमारा मानना था कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अगर इंडिया में ही खेलते रहेंगे तो इसको हम आगे कैसे पॉपुलर करेंगे। इसी के लिए हमने वर्ल्ड लेवल पे इसको स्टार्ट किया। और जब हमने वर्ल्ड लेवल पे किया, हमने उनके कैंप्स लगाए। कोविड से पहले हमने यहाँ पर 16 कंट्रीज़ के प्लेयर्स को बुलाया था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 16 कंट्रीज़ के जो प्लेयर्स आए थे उसमें से 8 to 10 प्लेयर्स कोविड के टाइम यहाँ पर जा नहीं पाए, जब हम ये कहेंगे फंस गए। उनको हमने 3 to 4 मंथ्स उनको यहीं पर स्टे करवाया। और खाली स्टे नहीं कराया, उस कोविड में भी हमने उन्हें खो खो सिखाया। होटल के अंदर हमने उनके लिए ऐसी वर्कशॉप्स तैयार करी
और जो बेसमेंट थी वहाँ पर हमने उनके लिए ग्राउंड्स प्रिपेयर करे। तो इस तरह से हमने कोविड के टाइम भी किया और उसका ही आज रिजल्ट है। उन खिलाड़ियों ने हमें परफॉर्म कर रहे हैं और वो यहाँ आएंगे। बिल्कुल लगता ही नहीं कि कोच हैं लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर ही है, क्योंकि सब लोग जुड़े हुए हैं, यू नो, एज अ फेडरेशन एंड एज अ टीम टू grow the game, right? That is what is the biggest voice that is coming out of you know, everybody sitting here कि ये गेम को आगे कैसे बढ़ाया जाए। So हाँ, हम भी इनके साथ थोड़ा जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। शर्मा जी, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, पर आप इसको आप जैसे ये लेवल के कोचेज़ हैं, राइट, आप और अच्छे कोचेज़ डेवलप करके ये लेगेसी क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हैं? एज अ व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स डू यू रन कि यू नो बेहतर से बेहतर और कोचेज़ आएँ ताकि और प्लेयर्स यू नो नसरीन जैसे आएँ? तो व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी ऑन दैट? अभी रिसेंटली लास्ट टू लास्ट मंथ अभी हमारे जो इंडिया के जो कोचेस थे उनका वर्कशॉप किया, सेमिनार किया। जो बेस्ट कोचेस सारे स्टेट्स के थे, सेक्रेटरीज वगैरह को बोला कि भाई अपने जो बेस्ट कोचेस हैं उनको बोलो, उनका लगाया। उससे पहले पूरे जो हमारे वर्ल्ड में जो कंट्री खेल रहे हैं खो खो, उनके जो कोचेस थे पहले उनको बुलाया, उनका सेमिनार किया, वर्कशॉप किया। उनका करीब 21 डेज़ का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगाया। और करीब जैसा कि भाटिया जी ने बताया कि प्लेयर्स भी आए और उनके साथ में उनके कोचेस भी आए। तो उन्होंने अपने यहाँ के जो कोचेस थे उनके साथ जो इंटरेक्ट किया, प्रैक्टिस किया, जो उनको बताया, तो साथ में वो उन्होंने प्रैक्टिस किया तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। उन्होंने अपने वहाँ पर जाकर जो टीमें तैयार की, जैसा कि नसरीन ने बताया, और हम लोग भी आजकल देखते हैं कि सोशल मीडिया पे भी, व्हाट्सएप पे भी अपनी वो भेजते हैं, अपनी वीडियोस भेजते हैं कि आज ये प्रैक्टिस किया, आज ये प्रैक्टिस किया। तो हम लोग भी फिर उनसे इंटरेक्ट करते हैं कि आपने जो किया, जो ये किया, तो इसके अंदर अगर इस तरीके से थोड़ा सा चेंज किया जाए तो और बेटरमेंट और अच्छा हो सकता है। तो इस तरीके से काफ़ी चल रहा है अभी। और जो वर्ल्ड कप है, अभी हमारे इंडिया से कोचेस जा रहे हैं वहाँ पे उनको ट्रेन करने के लिए, जो पहले से वहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है। उनमें जो कमी होगी उसकी फिनिशिंग के लिए, जिस तरह होता है ना कि अभी जो तैयारी चल रही है तो उसकी फिनिशिंग के लिए किस तरीके से, तो और ये सब हमारी फेडरेशन, और वही वाली बात है कि पहले भी चल रही थी फेडरेशन, लेकिन खो खो मैं बता दूं कि 1936 बर्निंग ओलंपिक के अंदर इस खेल का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद दुर्भाग्य है हमारे इस भारतीय खेल का कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब से हमारे सुधांशु सर और त्यागी सर ने जब से फेडरेशन संभाला, और इन सिर्फ 7-8 सालों के अंदर आप देखिए कि सिर्फ भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए कि जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो खिलाड़ियों की पहचान बनी है। आज अभी रिसेंटली अभी कल ही एक इन्फॉर्मेशन आई कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर 95 वैकेंसीज जो फिल की हैं उसमें से 35 खो खो प्लेयर्स को उसके अंदर वो मिला है, और वो भी गस्टेड पोस्ट मिली हैं, ये नहीं कि 35। तो ये सब क्या है कि ये सर जो इम्प्रूवमेंट चल रहा है, जो बेटरमेंट जो चला है, और पहले किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं था, लेकिन अब हर डिपार्टमेंट के अंदर हमारा खो खो का अभी इनकम टैक्स के अंदर रिसेंटली ज्वाइन किया है, नसरीन ने अभी ज्वाइन किया है इनकम टैक्स के अंदर। तो इम्प्रूवमेंट है, दिख रहा है। और उसी तरीके से तो ये कहने की बात ही नहीं है। और खो खो तो जो इम्प्रूवमेंट चल रहा है, जो प्रोग्रेस चल रहा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में एशियाड के बाद ओलंपिक के अंदर कोशिश जारी है, और वो दिन हमारे आने वाली पीढ़ी को देखने को मिलेगा कि जो कहते थे कि खो खो खेलते हैं आप लोग, खो खो खेलते हो, वो भी होगा कि हाँ हम खो खो खेलते हैं। थैंक यू। त्यागी जी कुछ कहना चाहते हैं, और आफ्टर दैट इफ एनी क्वेश्चंस, अदरवाइज देन वी विल मूव ऑन टू द एक्चुअली खो खो फेडरेशन जो बड़ी फेडरेशंस हैं उसमें तो है, लेकिन हम लोगों ने अभी लेवल 3 कोचेस कैंप शुरू किए हैं, जिसके अंदर 21 डेज़ हम लोग उनको एडवांस ट्रेनिंग देते हैं। उसके अंदर जो कोचेस नेशनल्स के अंदर
जिनका पोजीशंस है उन कोचेज़ को इन्वॉल्व करते हैं, जिसने एनालाइज किया है उसको करते हैं। एंड उसमें हमारे पास 60 कोचेज इस बार लेवल 3 में आए और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने भी एक्सेप्ट किया और जो उस कोर्स का एक लेवल रहा वाकई वो बहुत अच्छा था। और इस तरीके से हम कोचेज़ का, रेफरीज का टाइम टू टाइम जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं उसका हम कोर्सेज लगाते रहते हैं। तो इससे एक गेम का जो न्यू टेक्निक, टैक्टिस और जो इक्विपमेंट्स के बारे में हम लोग उनको बताते हैं, उनको उसके बारे में नॉलेज देते हैं। साथ साथ मैं एक अपना बात ख़त्म करने से पहले बताना चाहूँगा कि जब हम 17 से पहले ही, मेरा वैसे सिंह साहब हैं शिव जी के फादर साहब, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी क्योंकि मैं भी DCM में दौड़ता था, वो भी। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था क्योंकि मैं कबड्डी खो खो दोनों से जुड़ा हुआ था। मैंने कहा भाई हम लोगों को आप किट दे दीजिए। मैं रियली, वो आज स्वर्ग में है, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के खाली खो खो कबड्डी के लिए उनका जो एक रुझान था, जो उनकी एक मैं कह सकता मानसिकता थी, वो इतनी ठोस थी, मतलब पॉजिटिव थी कि रियली हम शिवनेरी जी का और इनका जो कंपनी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। थैंक यू सर। Thank you very much. One quick bit of information. Again, I said नेता हूँ मैं. Two things have really been very critical. One is the league. You know, I firmly believe that there is a transition which this industry can understand. When we looked at games, when we looked at sports, we looked at from the perspective of expenditure. Then it transcended to revenue. Today it is investment. Now this journey is not yet understood by people. And this is what I want you all to understand. The league for a game is very critical. You know, you can have two approaches, bottoms up or top down. जो दिखता है वो बिकता है. And league is a phenomenal opportunity for a game to popularize itself. So the leagues are very important. At the same time, there is where the criticality comes. The model is absolutely necessary. The federations do not have the wherewithal to understand what could be the model of engagement with a league organizer. और मेरा अपना अनुभव है कि आधी लीगें बहुत चालू हुई लेकिन बंद हो गई. और आधी के प्रिंसिपल कारण ये थे कि हाथी निकल गया, पूंछ फंस गई. मंच पे कितने जने बैठे, मेरे बैठे, तेरे बैठे, तूने कितने पास दिए, मुझे ये फीता मैंने काटा, तूने काटा. You know, these are the issues in which leagues got bogged down and they closed. Because all these models were never thought about. Leagues are a great source of financing of federations. See, there is the irony is that in name of financing the federation, there is no institutionalized support to a federation. Half the federations of this country are in the bastas of the secretary or the president. They are not statutorily established in terms of their infrastructure, office ये कुछ नहीं है साहब, क्योंकि कहाँ से पैसा आएगा? कोई देता नहीं, सरकार खर्च तो कर देगी, सरकार फेडरेशन को नहीं पैसा देगी. Which again to me, I think as an industry you must understand कि गेम कौन चला रहा है. ये फेडरेशन चला रही है. खेलो इंडिया बहुत अच्छा है, लेकिन खिलाड़ी जो स्टार निकलते हैं उनका वहाँ से का यहाँ तक का सफ़र जो है ना, उसके नेशनल्स करवाना, उसके डिस्ट्रिक्ट करवाना, उसका स्टेट करवाना, ये फेडरेशन करती है. और फेडरेशनों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करोगे, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करोगे, तो चलेगा कैसे? 2000 करोड़ वहाँ खर्च करने अच्छे हैं भाई, यहाँ पे भी 2, 4, 5 करोड़ इनको दे दो, ये फेडरेशनें खड़ी हो जाएंगी.
और लेट मी टेल यू, देखिए देयर आर बैड एप्पल्स इन एवरी सिस्टम. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हम सिस्टम को इवैल्यूएट नहीं करते हैं, हम उसके एब्रेशंस को इवैल्यूएट करते हैं. एंड दी एब्रेशंस गिव अ बैड नेम टू द एंटायर सिस्टम. खेल अगर चल रहे हैं तो कुछ धड़कते दिल भी हैं. त्यागी जी की जिंदगी जो है सिर्फ इसके लिए डेडिकेटेड है. अश्वनी जी जो है घर बार छोड़ के, मतलब इनके बच्चे इनको छोड़ जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ खो खो ही सोचते रहते हैं. भाटिया जी का बेटा बीमार रहा लेकिन ये खो खो खिलवा रहे थे. ये धड़कते दिल भी हैं खेल में. इनको हम इसलिए नहीं रिकग्नाइज करते कि कुछ बैड एप्पल्स भी हैं. बट ये सारा इकोसिस्टम में इंस्टीट्यूशनलाइज करना, गवर्नेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज करना बड़ा क्रिटिकल है, विच आई थिंक एट द लेवल ऑफ दिस फोरम कहीं इसको चर्चा में लाना चाहिए, बुलाना चाहिए. जो एक मिथ है और एक ये जो एक परसेप्शन बना हुआ है ना कि एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं सेल्फ सीकर्स हैं, हाँ हैं, वैसे भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो धड़कते दिल हैं. एक लास्ट चीज, जस्ट वन लास्ट थिंग. आई एम प्राउड टू से दैट वी हैव टुडे रीच्ड 54 countries where the game is played. The last day for entries for the World Cup was the 30th of October, and I'm proud again. We received 35 entries from 35 countries, both for men and women. I mean, and that's more critical. These are not Indian imports to those countries. It is not the H-1B visas, US cricket team. These are all natives of those countries who are playing Kho-Kho. So if it's South Africa, it's the colored people there. If it's Korea, it's the Koreans. It's the Germans who are playing it. If it's Ghana, if it's Kenya, it's the natives who are playing it. Even in England, 60% of them are the whites. Malays, Indonesians, I mean, Iran. So our emphasis has been that if this game has to grow, it will only grow when the natives of those countries are going to play this game. That, I think, is something which the indigenous games have to recognize and acknowledge and endeavor. Because number तो हुडविंग करने वाली चीजें हैं. अरे 54 देशों में खेला जा रहा है, हाँ खेला जा रहा है, कौन खेल कौन रहा है. खेल पता लगा जब यहाँ से जो हमारे गए हुए थे, पटेल्स गए हुए थे, सिंग्स गए हुए थे या मारवाड़ी गए हुए थे, खेल रहे हैं. नहीं भैया, खिलाना है तो उनके एंड वी अडॉप्टेड अ टेक्निक विच आई मस्ट शेयर. हाई परफॉर्मेंस सेंटर अलग अलग गेमों के जो थे ना, उनको हमने पकड़ा कि वहाँ के जो खिलाड़ी बच्चे हैं दूसरे गेम में हैं, हॉकी खेल रहे थे, उनको उठाओ. जो आइस हॉकी के थे या मतलब फुटबॉल के थे, एबल बॉडी, वेरी वेरी एथलेटिक, वेरी दिस थिंग, उनको उठाओ, उनको लाओ. एंड दैट्स हाउ दिस इज ग्रोन. थैंक यू. Thank you. Thank you to... Thank you very much. It is our Sportscom's honor also to have all of you here, and thank you so much. May I now request Mr. Joshi to kindly present the memento to our distinguished speakers, please. To Mr. Sudhanshu Mittal, President Kho-Kho Federation of India. Requesting everybody to kindly give a big round of applause. Mr. M.S. Tyagi, Secretary General Kho-Kho Federation of India. Mr. Sumit Bhatia, National Coach, Kho-Kho Federation of India. Mr. Ashwini Sharma, National Coach, Kho-Kho Federation of India. Ms. Nazreen Sheikh, Arjun Awardee Captain, Indian Women's Team of Kho-Kho. Thank you everybody for this inspiring and motivational session.
Ladies and gentlemen, we'll be beginning our session just in a couple of minutes while we have the changeover. Thank you so much for your patience. Thank you.